So we already started with basic concepts of R programming. Okay, we in last lecture we discussed about comments, writing comments in through R programming, data types of R programming, then variables, how to declare variables, how to use variables in R programming, how to assign values to the variables, and keywords. Up to this we discuss. Okay, a quick revision. So there are two ways of writing comments in R programming: single line comment and multi-line comment. Single line comment you can write like this. Single line comment begin with hash. Okay, and any number of single line comments you can write in a R programming. R programming does not support writing multi-line comments, but still, if you want to write multi-line comments, you can make use of if block with false condition. So if manually write there false, or you can write 0. So false, make sure that it should be in capital FALSC because it's a Boolean value. Okay, and in that block, then multi-line comments you can write. Okay, this is a false block. This will never get executed. Okay, so this is a trick to write multi-line comment. Actually, R programming does not support multi-line comments. Single line comments only can be supported by the R programming. Okay, then data types. R programming supports logical data type, numeric, integer, complex, character, and raw data type. Logical means true and false. Logical data type supports only two values, either true or false in capitals. Make sure that this is not a string. Okay. डबल कोट में लिखना है, directly लिखना है true capital में और false capital में. So these are the two values which are considered as logical values. Okay, and these values we can call it as a logical data type. Okay. Then second data type है numeric. So whole numbers with or without decimal point is numeric data type. ठीक है, numeric data type में decimal point allowed है, skip किया तो भी चलेगा, no problem. ठीक है. So the numbers with or without decimal point are numeric data type in R programming. Then integer data type, the number without decimal point called as integer, but there is a different way to write integer numbers in R programming. Capital L you must write at the end of the number to represent that number as a integer number. Okay, if you write the number directly, then that numbers represent numeric values, and the data type will become numeric data type. Okay, for integer number fix compulsory you are supposed to write capital L at the end of the number. If capital L is there at the end of number, means that number is considered as integer. Then complex data type, the values in the form of real values and imaginary values, like I plus 2i, 1 plus 2i, 7 plus 3i, all these are the complex values that it is interpreted as complex data type. Then character data type, any single character or set of characters either enclosed in single quote or double quote is considered as a character value. Okay, so here true is a character value, not Boolean value. Okay, because this true is enclosed in double quote. So true is character value, not logical value. Logical value आपको directly लिखना है without double quotes. This is also character values. So 30.35.4, as it is enclosed in single quote, it is character. Okay, so either you can write character value in single quote or double quote. Single character or set of characters are allowed. And raw data type is used to store a raw string which consists of escape sequence characters. More about raw data type we'll discuss later. Variables in R programming. So variables are used to store values, to hold values. Okay, make sure that key R is dynamically typed language. Okay, that's why there is no need to declare variable as we declare in C language. In R programming language, while writing the script, no need to declare the variable. Okay, directly any type of value you can store in a variable. Whatever the value stored in the variable, that become the data type of that variable. Okay, directly while using the variable, you can store either logical value, either you can store numeric value, either you can store integer, either you can store complex, either you can store character value, or you can store raw string in a variable. If you store numeric value in a variable, that data type of that variable become numeric. If you store logical value in a variable, that true or false, that data type of that variable become logical, and so on. Okay, and any value you can store in a variable. This is not the case that in integer variable only means integer value you can store. Later you can also change the value. Okay, in a single variable,
throughout the same program you can store different types of values. It's allowed in R programming but not in C programming. Okay, because in C programming first you are supposed to declare the variable of a specific data type, and whatever the data type of the variable is, that value only you can store in that variable through C language. C language through अगर मैंने एक variable declare किया int a, तो पूरे प्रोग्राम थ्रू में a वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता हूँ ना, लेटर में उसके अंदर a वेरिएबल के अंदर फ्लोट या तो फिर स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकता। बट ऐसा आर प्रोग्रामिंग में नहीं है, क्योंकि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना ही नहीं है। ठीक है, जस्ट यूज द वेरिएबल, स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन दैट। एक वेरिएबल में आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, लॉजिकल, कौन सा भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बाद में वो आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। अगर सपोज पहले इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है आर प्रोग्रामिंग के वेरिएबल में, बाद में उसी वेरिएबल के अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बाद में उसी वेरिएबल में आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो। Yes, it is possible, it's allowed, because R programming is dynamically typed language. रन टाइम पे चेक होता है, रन टाइम पे कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, so because of this dynamic nature a variable is not declared of any data type. So these are the rules you must follow while declaring the variable. ठीक है, बेसिक रूल है कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। ठीक है, वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर, डॉट, अंडरस्कोर, इतना सारा जो कैरेक्टर है हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम के अंदर, बट इट मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट ओनली। वेरिएबल कैन आल्सो स्टार्ट विद डॉट, dot is allowed in the variable name, but after dot, if the variable name begins with dot, after that dot, digits are not allowed. ठीक है, वेरिएबल नेम can't start with underscore. ठीक है, वेरिएबल नेम cannot start with numeric digit, no spaces, special characters are allowed. These are the basic rules you must follow while giving name to the variable. Then there are different ways of assigning variable value to the variable. ठीक है, three methods are there that our program is supposed to assign value to the variable. Suppose if I want to assign value 10 to the variable, I can write like this: a angle bracket hyphen 10. Make sure that it's not underscore, it's hyphen, minus symbol, and this is less than symbol. ठीक है, a less than hyphen 10, इसका मीनिंग क्या है? Value 10 will get assigned to a variable. ठीक है, this is left word operator. 10 will be assigned to a, so meaning 10 assigned to a. ठीक है, अगर मुझे 20 वैल्यू बी को असाइन करना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 देन रिटर्न सिंबल हाइपन बी, सो 20 विल गेट असाइन टू बी वेरिएबल। इसको रीड कैसे करना है? 20 असाइन टू बी, तो बी का वैल्यू 20 हो जाएगा। और बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आल्सो यू कैन असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल c इज इक्वल टू 30। ठीक है, सो वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस सिंटैक्स, तो ये सिंटैक्स हम यूज करने वाले। तीनों में से आप कौन सा भी एक सिंटैक्स यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा आपको सिंटैक्स यूज करना है। ऑल syntax or methods are allowed to assign a value to the variable. ठीक है, कुछ बुक में ऐसा सिंटैक्स दिया होगा तो कंफ्यूजन मत कर लेना। कुछ बुक अगर आप रेफर करो उसमें ऐसा सिंटैक्स दिया तो कंफ्यूजन मत कर लेना। ठीक है, 20 greater than hyphen b means b is equal to 20, a less than minus 10 means a is equal to 10. ठीक है, then we also discuss about print function. There are two functions which are used to print the value of variable, that is print and cat. ठीक है, the difference between print and cat is print can print only one value at a time, cat can print multiple values at a time. ठीक है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए आप दो फंक्शन का यूज कर सकते हो, प्रिंट फंक्शन का या तो फिर कैट फंक्शन का। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिंट फंक्शन एट अ टाइम एक ही वैल्यू प्रिंट कर सकता है, कैट फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर सकता है। तो एज्यूम करो कि अगर तीन वेरिएबल अगर यूज किए हैं आर प्रोग्रामिंग में, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू 30, तो प्रिंट a किया तो a का वैल्यू 10 डिस्प्ले होगा, नो प्रॉब्लम। प्रिंट कैन डिस्प्ले वन ऑब्जेक्ट, print function can print only one object on a screen as the output, so allowed है। लेकिन अगर print a comma b लिखा तो दो ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है print function को डिस्प्ले करना स्क्रीन के ऊपर। हाँ, जो पहला है वो डिस्प्ले होगा, सिर्फ सेकंड डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपने कुछ ऐसे इस तरह भी लिखा print a is equal to a, तो ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और ये एक्चुअल वेरिएबल है। ठीक है, एरर है, ऐसे कुछ आप नहीं लिख सकते। ठीक है, कैट ए तो ए का वैल्यू डिस्प्ले होगा, कैट ए बी सी, अभी आपने तीन ऑब्जेक्ट पास किया है कैट फंक्शन को तो तीनों वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपने कैट ए इज इक्वल टू ए तो आउटपुट ऐसा आएगा, स्ट्रिंग पर डिस्प्ले होगा ए इज इक्वल टू, और ए का वैल्यू जो है 10। ठीक है, सो ज्यादातर हम कैट फंक्शन यूज करने वाले हैं जब हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट फंक्शन का कम यूज होगा।
ठीक है, कैट फंक्शन ज्यादातर हम यूज करने वाले असाइनमेंट स्टोर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ से कैट फंक्शंस प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लास फंक्शन इज यूज्ड to check the data type of the variable. At any time you can take check the data type of a variable कि what type of value is stored. ठीक है, क्योंकि देखो आर प्रोग्रामिंग के वेरिएबल में आप कौन सा भी वैल्यू रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हो, कौन सा भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो करंट डेटा टाइप क्या है वेरिएबल का, कौन सा करंटली कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर किया है, अगर आपको चेक करना है तो आप क्लास फंक्शन चेक कर सकते हो। सो एज्यूम दैट a इज इक्वल टू 10, ए वेरिएबल में 10 अगर वैल्यू स्टोर किया है तो न्यूमेरिक डेटा टाइप है ए का, है ना, क्योंकि नंबर है, दिस नॉट इंटीजर, क्योंकि एल यहाँ पे लिखा नहीं है 10 के बाद, तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। सो प्रिंट क्लास ऑफ ए विल डिस्प्ले न्यूमेरिक डेटा टाइप। प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, ए वेरिएबल का क्लास कौन सा है, तो क्लास कौन सा है, न्यूमेरिक। ठीक है, प्रिंट क्लास ऑफ बी, बी वेरिएबल में क्या स्टोर किया है, ट्रू। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट में नहीं लिखा है, तो दिस इज लॉजिकल वैल्यू, टी आर यू इन कैपिटल इज अ लॉजिकल वैल्यू। सो बी वेरिएबल का क्लास कौन सा हो गया, लॉजिकल। अगर सी इज इक्वल टू 34 एल लिखा है तो सी वेरिएबल का डेटा टाइप या तो फिर क्लास कौन सा हो जाएगा, इंटीजर, है ना। तो बाद में अगर आपने प्रिंट क्लास ऑफ सी अगर प्रिंट किया तो इंटीजर डिस्प्ले होगा। और डी इज इक्वल टू पुणे इसमें स्ट्रिंग स्टोर किया है तो डी वेरिएबल का क्लास हो जाएगा कैरेक्टर। Keywords, these are the reserved words. Some words are already predefined to the R programming language. Those words are called as keywords. So R supports 18 keywords. Okay. So all these are the list of keywords that R programming supports. So यहाँ तक कि हमने last lecture में discuss किया था. ठीक है. Today we'll continue our discussion on operators in R. ठीक है. So what is operator? What you can say? What is operator? सी लैंग्वेज का डेफिनेशन बोलो, सी लैंग्वेज में आपको क्या पता है, क्या समझा है ऑपरेटर्स के बारे में? Yes, anybody, what is operators? Operators are used to perform operations between two variables or two values. Okay, so operator is a symbol that represents a specific operation. Operator is a symbol that represents a specific operation. Just a minute, students, just a minute. Okay, am I audible? Yes, Yes, sir. So operator is nothing but operator is a symbol that represents a specific operation. Okay, like plus, plus is a symbol, and this plus symbol represents addition operation. Operation. So plus symbol is the operator of R programming. ठीक है, सिंबल है प्लस, उसको एक ऑपरेशन असाइन किया है तो उस सिंबल को हम बोलेंगे ऑपरेटर। ऐसा सिंबल जिसको कुछ ना कुछ ऑपरेशन असाइन किया है। अगर ऐसा एक सिंबल है लेकिन उसको ऑपरेशन असाइन नहीं किया है तो वो ऑपरेटर नहीं बोल सकते। लाइक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एक सिंबल है जो आर प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, लेकिन इसको क्वेश्चन मार्क को कुछ भी ऑपरेशन असाइन नहीं किया गया है, तो क्वेश्चन मार्क इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सो ऑपरेटर इज नथिंग बट अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ऑपरेशन. An operator is a symbol which tells the compiler to perform specific logical or mathematical manipulation or operation. There are the following types of operators used in R. So R programming supports these many operators: arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, miscellaneous operators. Let's discuss all this category of operators in detail one by one, so that while writing R programming you can use
different operators available in each and every category. ठीक है, हर एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स है जो आप प्रोग्रामिंग लिखते समय यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूज. So first category of operator is arithmetic operators. Arithmetic operators are symbol which are used to represent arithmetic math operation. There are various arithmetic operators which are supported by R. ठीक है, तो you are already aware about the arithmetic operators of C language. Same here as it is you can use. Here three operators are new to you. ठीक है, as compared to C language. Actually R programming supports 4 plus 3 8 arithmetic operators. C language में 5 arithmetic operators. C language supports only 5 arithmetic operators. Here R programming supports 8 arithmetic operators. This 4 and this 3. Let's discuss one by one. पहला arithmetic operator है plus, which is used for addition operation. This operator is used to add two values, two vectors in R. ठीक है, तो दो नंबर के ऊपर अगर आपको एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दो वेक्टर्स के ऊपर अगर आपको एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो. ठीक है, सो हियर वेक्टर एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको डिटेल में बाद में सीखना है. ठीक है, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वेक्टर्स. ठीक है, तो वेक्टर्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल हम अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि एडिशन ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा वेक्टर्स के ऊपर. सिंपली वेक्टर क्या होता है, लिस्ट ऑफ वैल्यू, जैसे एरे होता है सी लैंग्वेज के अंदर, है ना. तो वेक्टर इज आल्सो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. ठीक है, आई थिंक only same data type values we can store. Let's check. Vector is the most basic data structure in programming. Collection of similar types. Similar types is similar to the array. ठीक है, सेम टाइप के वैल्यूज वेक्टर के अंदर आप स्टोर कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि a वेक्टर है. ठीक है, वेक्टर यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग c फंक्शन. a is equal to c of, then you are supposed to write the elements whatever you want to store in the vector. सपोज मैंने a वेक्टर में 3 वैल्यू स्टोर किया है. मेक श्योर दैट ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप. सो ये सारे सेम डेटा टाइप है ना. कौन सा डेटा टाइप है, ये सारे वैल्यूज कौन से डेटा टाइप के हैं, न्यूमेरिक. करेक्ट, न्यूमेरिक डेटा टाइप है. न्यूमेरिक डेटा टाइप में देखो डेसिमल पॉइंट अलाउड है, आप स्किप भी कर सकते हो. सो दिस न्यूमेरिक 2, दिस इज न्यूमेरिक 3.3, दिस इज न्यूमेरिक 4. इंटीजर नहीं है क्योंकि कहीं पर भी एल अटैच नहीं किया है, तो दीज आर नॉट इंटीजर वैल्यूज. अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है वेक्टर के अंदर, तो मुझे यहाँ पे हर एक वैल्यू को 3 अटैच करना पड़ेगा, और डेसिमल पॉइंट इज नॉट अलाउड इन द इंटीजर वैल्यूज. So this is the way how you can create vector in R programming by using C function. C inbuilt function, that function is used to combine the values. C for combine say I am combining this or collecting these 3 values as a one data structure. तो ये तीनों values एक data structure A में store हो जाएंगे, and this data structure will be a vector. ठीक है, list of elements. Vector is nothing but list of elements of similar data types. ठीक है, so if अज्यूम करो कि दो वेक्टर्स अवेलेबल है, a is equal to c of 2 3.34 और दूसरा वेक्टर b is equal to c of 3, 4, 5. यहाँ पे मैंने वेक्टर सपोज क्रिएट किया है. वेक्टर को कैसे क्रिएट करना है, सी फंक्शन का यूज करके. आप ये सी नहीं स्किप कर सकते हैं, दिस फंक्शन. ठीक है, आपने अगर सपोज डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखा b is equal to 3, 4, 5, दिस इज नॉट अलाउड. वेक्टर क्रिएट नहीं होगा. वेक्टर क्रिएट करने का फंक्शन है सी फंक्शन. b is equal to c of, and then write any number of elements whatever you want to store in that vector. यहाँ पे b वेक्टर क्रिएट हो जाएगा. उस वेक्टर में कितने एलिमेंट स्टोर हो गए, 3 एलिमेंट, 3, 4 और 5. और वेक्टर का डेटा टाइप कौन सा है, न्यूमेरिक, बिकॉज ऑल दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यूज. Then I can perform addition operation on these two vectors. I can simply write print a plus b. Print a plus b. ठीक है, तो दोनों वेक्टर के एलिमेंट्स का एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा. सो पहले वेक्टर का पहले एलिमेंट, दूसरे वेक्टर का पहले एलिमेंट, दोनों का एडिशन होगा 2 + 3. सो पहला एलिमेंट होगा 5. देन दूसरे पहले एलिमेंट, पहले वेक्टर का दूसरा एलिमेंट, दूसरे वेक्टर का दूसरा एलिमेंट, दोनों का एडिशन 3.3 + 4, दिस इज 1.3, and 4 + 5 is 9. So this will the result.
ठीक है. So this is not the case that only this operator you can use to perform operation on vectors. मैंने वेक्टर का एग्जांपल यहाँ पे लिया है क्योंकि बाद में आपको ये डेटा स्ट्रक्चर सीखना है. No problem, you can also use this plus operator to perform addition of any two numbers. ठीक है, numeric values or integer values, no problem. Similarly, minus operator used for subtraction. ठीक है, दो वेक्टर्स का आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. लाइक 2 - 3 इज -1. अगर मैंने लिखा ए प्रिंट a - b, ये दो वेक्टर्स है. 3 - 3 -4 is -0.7 and 4 - 5 is -1. You can also do the multiplication of the elements of two different vectors by using star operator. Star represents multiplication. So suppose these are the two vectors a and b. I can calculate the multiplication of these two vectors. If I write print a star b, what will the output? 2 into 5, 10. 1 into 2, 2. And 4 into 3, 12. Multiplication of each and every element from both the vector will be calculated by using this star operator. Then next operator is slash, single forward slash, which is used for division. This operator divide the vector from another one. ठीक है. So अगर मैंने a vector को divide किया the elements of b vector, पहले वेक्टर के एलिमेंट को अगर मैंने दूसरे वेक्टर के एलिमेंट से अगर डिवाइड किया तो आउटपुट क्या आएगा? सो 11 डिवाइडेड बाय 2 इज 5.5. ठीक है. तो आप अगर आपने ऐसा थिंक किया कि 11 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर, तो रिजल्ट इंटीजर में होना चाहिए, तो नहीं, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी न्यूमेरिक वैल्यूज है. ठीक है, दैट्स व्हाई 11 डिवाइडेड बाय 2 इज 5.5. अगर इसी लैंग्वेज में लिखा होता 11 बाय 2 तो आंसर 5 आता. ठीक है, क्योंकि इसी लैंग्वेज में 11 और 2 ये इंटीजर वैल्यूज है, लेकिन सिर्फ आर प्रोग्रामिंग में न्यूमेरिक वैल्यूज है. So 11 divided by 2 is 5.5. Then 8 divided by 4 is 2. Then 12 divided by 5 is 2.4. Exact values, exact result, exact question part. ठीक है. तो ये इतने चार ऑपरेटर में पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आर प्रोग्रामिंग में. बाद में हम ये तीनों ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये भी नया कंप्यूटर है तो मुझे पहले आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा. So I'm taking this lecture from some other PC. यहाँ पे और प्रोग्रामिंग ऑलरेडी नहीं है तो मुझे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा. So एक बार देख लो कि कैसे आपको आर प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करना है. ठीक है, जस्ट गो टू दिस वेबसाइट cloud.r-project.org. ठीक है, cloud.r-project.org. इस वेबसाइट थ्रू आप आर प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल कर सकते हो. जैसे ही वेबसाइट खोलेगा होम पेज से आपको डाउनलोड आर फॉर विंडोज, इसके ऊपर क्लिक करना है. डाउनलोड आर फॉर विंडोज. हाँ, आपको लिनक्स पे नहीं करना है, मैक ओएस पे नहीं करना है, विंडोज पे करना है तो विंडोज पे क्लिक करो. Then second page will get open. From that web page you are supposed to click on this install R for the first time. ठीक है, the next web page will get open. From that web page you are supposed to click on this download R 4.1.1 for Windows. तो इसका एक इंस्टॉलेशन फाइल यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा डाउनलोड हो रहा है, जो कि डाउनलोड हो चुका है. ठीक है, शो इन फोल्डर पे जाके उसको आपको डबल क्लिक करना है सेटअप के ऊपर. नेक्स्ट करते जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा आर प्रोग्रामिंग. तो ये देखो यहाँ पे आ गया आर प्रोग्रामिंग. स्टार्ट मेनू में
ठीक है, ओके ठीक है। सो इट इज विजिबल टू यू स्टूडेंट्स, आर प्रोग्रामिंग का कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, ओके तो यहाँ पे हम यूज करके देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो पहले 4 ऑपरेटर हमने यूज करके देखे हैं, सीखा है, उसको यूज करके देखेंगे। लाइक 10+2 कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आपने कमांड दिया 10+2 तो डायरेक्टली 30 आंसर आएगा एज आउटपुट। देखो 30 आ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड दे सकते हो बाय यूजिंग ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर यूज किया है, 10+2 20 is 30, ठीक है। 3.4 plus 5.6 is 9, है ना। 3.2 plus 5.8 5.9 is 9.1. Addition operator, you can perform addition of two operands, ठीक है। ये वेक्टर के ऊपर अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सपोज मैं यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट करने जा रहा हूँ, a नाम का है वेक्टर, a is equal to c ऑफ, वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, c फंक्शन से, उसके अंदर मुझे 3 वैल्यू स्टोर करना है, 5 7 12, ठीक है। तो एक वेक्टर क्रिएट हो गया। अगर आपको ए वेक्टर को प्रिंट करना तो सिंपली आप ए भी टाइप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, और प्रिंट ए भी लिख सकते हो, क्योंकि कमांड हो गया है। कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली ए का वैल्यू डिस्प्ले होगा, प्रिंट ए से भी वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। प्रिंट ए जब मैंने लिखता हूं तो वो वेक्टर डिस्प्ले हो रहा है एज आउटपुट, ठीक है। तो अभी मैं दूसरा वेक्टर क्रिएट करने जा रहा हूँ, b इज इक्वल टू c ऑफ, और दूसरा वेक्टर है 2 1 3, बी वेक्टर को प्रिंट किया 2 1 3, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, तो पहला वेक्टर है a 5 7 12 और दूसरा वेक्टर है 2 1 3। अगर मुझे a वेक्टर के एलिमेंट्स को b वेक्टर के एलिमेंट से के साथ ऐड करना है तो मैं सिंपली a प्लस b लिख सकता हूँ, a प्लस b। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 7 8 एंड 2 प्लस 12 15, ठीक है। b प्लस a b लिखा तो रिजल्ट वही आएगा 7 8 15। a माइनस b किया तो, ठीक है। सो 5 minus 2 3, 7 minus 1 6 and 12 minus 3 9। b minus a किया तो 2 minus 5 minus 3, 1 minus 7 minus 6, 3 minus 12 minus 9, ठीक है। So like this you can perform subtraction, addition, subtraction operation. Just a minute student, just a minute. Okay. In the same manner, we can perform a multiplication operation. So if I write a star b, so it will perform multiplication of every element of both the vectors. 2 into 5 10, 1 into 7 7, and 3 into 12 36. Like a divided by b is 2.5. 5 divided by 2 is 2.5. Then 7 divided by 1 is 7.0, and 12 divided by 3 is 4.0. Okay. If you divide b, the elements of b vector by the elements of a vector, the result will be like this. Yeah. 2 divided by 5. 2 को अगर 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन पार्ट आएगा 0.44.
1 को अगर 7 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा 0.14 और 3 को अगर 12 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा 0.25। ठीक है, तो ये मोस्टली हमको ये जो ऑपरेटर्स है वेक्टर्स के ऊपर यूज करने बाद में जब हम वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे तब, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वेक्टर के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दीज आर न्यू टू यू। ठीक है, जो कि सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है लेकिन आर लैंग्वेज उसको सपोर्ट करता है। ये पहले ऑपरेटर तो सी लैंग्वेज में एज इट इज अवेलेबल, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, so this operator double percent ना, percent symbol है, this operator is used to find remainder of the first vector with the second vector। so ये remainder का ऑपरेटर है ना, मॉड ऑपरेटर। जो सी लैंग्वेज में सिंगल परसेंट है, यहाँ पे आर प्रोग्राम में आपको डबल परसेंट यूज करना पड़ेगा। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, डिवीजन का अगर रिमाइंडर आपको चाहिए तो आपको मॉड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा और उसका सिंबल है परसेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो 5 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2.5, क्वेश्चन पार्ट 2.5 आएगा, लेकिन मुझे रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो मुझे अगर रिमाइंडर चाहिए तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा जो कि हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं 5 mod 2, लेकिन ये अलाउड नहीं है आर प्रोग्रामिंग में, एरर आ जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ ऑपरेटर ही नहीं है। ऑपरेटर कौन सा है, परसेंट रिमाइंडर के लिए 5% 2, अभी रिमाइंडर डिस्प्ले होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, अभी 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, what will the remainder 1। 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन है ना। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 5 are divided by 2 तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक है, फर्दर इफ यू वांट द एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट देके एक 0 ऐड कर सकते हैं। 2.5 2 into 5 10 तो रिमाइंडर आया 0 अभी, एंड दिस इज द क्वेश्चन पार्ट। सो सी आर प्रोग्राम में अगर आपने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2 तो इसका रिजल्ट आएगा क्वेश्चन पार्ट 2.5। और अगर आपने लिखा आर प्रोग्रामिंग में 5 मॉड के लिए कौन सा ऑपरेटर है, परसेंट 2 तो इसका रिजल्ट आएगा 1, ये वाला रिमाइंडर। ठीक है, यहां तक की स्किप हो जाएगा, बाद में 2 रिमाइंडर आएगा 1। 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1। तो दिस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो ये पहला वेक्टर ए, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 11 12 14। बी वेक्टर दूसरा, उसमें 3 एलिमेंट है 2 4 5। तो आप कुछ इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो उस दोनों वेक्टर के ऊपर, ए परसेंट बी। सो ए वेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स है उसको डिवाइड किया जाएगा एलिमेंट्स फ्रॉम द वी वेक्टर, और आउटपुट में क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा। सो 11 डिवाइडेड बाय 2 is 1। 11 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। 12 को अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 0 ना। 4 3s are 12 तो रिमाइंडर 0 आएगा। एंड 14 को अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 2s are 10 एंड रिमाइंडर में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट कीप इन योर माइंड फॉर रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन यू कैन यूज दिस ऑपरेटर in R programming, percent. The next operator is percent /%. So this operator is used to find the division of the first vector with the second question part without say decimal point. ठीक है, floor division इसको बोलेंगे, floor division। This is a floor division operator, FLOOR, floor division operator। ना %/% floor division operator है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर मैंने डिवाइड किया 2 से तो आंसर 2.5 आएगा, लेकिन मुझे सपोज डेसिमल के बाद के डिजिट स्किप करना है, मुझे एग्जैक्ट से इंटीजर फॉर्म में अगर रिजल्ट, इंटीजर नहीं बोल सकते, मुझे डेसिमल
पॉइंट के पहले के डिजिट के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए. सपोज डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है वो स्किप करना है ना. बाय डिफॉल्ट स्लैश ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट इन न्यूमेरिक फॉर्म. ठीक है. तो मैंने अगर ऐसे कर यूज किया 5%/%2 तो रिजल्ट आएगा 2, नॉट 2.5. उसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन. ठीक है. फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. तो skip the digit after the decimal point. Round it return the rounded value, floor value. ठीक है. फ्लोर और सीलिंग वैल्यू की बाद में आपको पता होगा. सीलिंग वैल्यू जैसे सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन ऊपर होता है तो ऊपर का वैल्यू हम कंसीडर करते हैं. फ्लोर मींस पैर के नीचे हमारे फ्लोर जो होता है तो उसका नीचे का वैल्यू कंसीडर होता है. so, जैसे 2.5 का फ्लोर वैल्यू कौन सा है 2 और 2.5 का सीलिंग वैल्यू क्या हो गया 3 ना. ये दो फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं फ्लोर और सीलिंग फंक्शन. 2.5 का सीलिंग वैल्यू कौन सा है 2.5 का सीलिंग वैल्यू 3. नेक्स्ट मींस राउंडेड वैल्यू, इमीडिएट राउंडेड वैल्यू. सीलिंग में ऊपर का वैल्यू लेते हैं और फ्लोर में नीचे का वैल्यू जो है हम कंसीडर करते हैं राउंडेड वैल्यू. सो 2.5 का सीलिंग वैल्यू है सीलिंग वैल्यू 3 और 2.5 का फ्लोर वैल्यू है 2. तो ये जो इसको फ्लोर डिवीजन ऐसे नाम क्यों दिया है बिकॉज इट गिव्स द फ्लोर राउंडेड वैल्यू ऑफ द डिवीजन. द क्वेश्चन बार का फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है ये ऑपरेटर, फ्लोर राउंडेड वैल्यू. ठीक है. सो 2.5 का फ्लोर नीचे का वैल्यू है ना कौन सा है 2 राउंडेड वैल्यू 2 फ्लोर डिवीजन. ठीक है. फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर परसेंट फॉरवर्ड स्लैश परसेंट. ठीक है. like suppose we'll check the data type as well. b is equal to say 5%/%2 and b का वैल्यू प्रिंट किया तो 2 आएगा एंड क्लास चेक किया तो क्लास ऑफ b वो न्यूमेरिक ही बता रहा है. ठीक है. नॉट इंटीजर. ठीक है. न्यूमेरिक 2. ठीक है. नो प्रॉब्लम. ठीक है. लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट है वो स्किप कर रहा है क्योंकि राउंडेड वैल्यू में रिटर्न हुआ रिजल्ट. फ्लोर डिवीजन क्या करेगा राउंडेड वैल्यू में रिजल्ट रिटर्न करता है. डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है वो स्किप हो जाएंगे और फ्लोर वैल्यू को रिटर्न करता है. बेसिकली फ्लोर वैल्यू को रिटर्न करता है, उस वैल्यू का फ्लोर वैल्यू का वैल्यू को रिटर्न करता है. लाइक 1.7 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा 1.7 का फ्लोर वैल्यू फ्लोर 1.5 नहीं पॉइंट तो नहीं फ्लोर में पॉइंट नहीं होता ही नहीं. हाँ राउंडेड वैल्यू 1 करेक्ट 1 होगा. आई थिंक अभी सपोर्ट कर रहा है फंक्शन नहीं कर रहा है शायद. अभी मुझे पता नहीं फ्लोर फंक्शन की लैंग्वेज में है. हाँ देखो फ्लोर फंक्शन फ्लोर ऑफ 1.7 क्या है 1 और 1.7 का सीलिंग वैल्यू क्या आएगा. सीलिंग मींस ऊपर का राउंडेड वैल्यू 2 आएगा. 1.7 का सीलिंग वैल्यू 2. अभी यहाँ पे वो फंक्शन है या नहीं मुझे पता नहीं, ट्राई करके देखेंगे. सीलिंग नाम का फंक्शन है SERLING सीलिंग ऑफ 1. सीलिंग फैन जैसे बोलते हैं सीलिंग फैन ऊपर होता है फ्लोर नीचे होता है. तो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट रिमेंबर कि सीलिंग फंक्शन का वैल्यू क्या रिटर्न करेगा और फ्लोर फंक्शन का वैल्यू क्या रिटर्न करेगा. सो सीलिंग ऑफ 1.7 इज 2 ऊपर का वैल्यू 1.7 का नेक्स्ट इमीडिएट राउंडेड वैल्यू ऊपर का राउंडेड वैल्यू सो जो कि 2 है और फ्लोर मींस नीचे का वैल्यू 1.7 का राउंडेड वैल्यू है 1. तो उसी तरह ये इस ऑपरेटर का नाम क्या है फ्लोर डिवीजन. ठीक है. फ्लोर डिवीजन मींस दिस ऑपरेटर रिटर्न द क्वेश्चन पार्ट इन राउंडेड फॉर्म ऑफ फ्लोर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ठीक है. दैट्स व्हाई 5/2 लिखा तो आंसर आएगा 2.5. लेकिन अगर मैंने ये ऑपरेटर यूज किया फ्लोर डिवीजन 5%/%2 तो एक्चुअली 5/2 होता है 2.5 और उसका फ्लोर वैल्यू क्या आएगा 2. सो दिस ऑपरेटर रिटर्न द फ्लोर वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट ऑफ द डिवीजन. लाइक दिस यू कैन रिमेंबर. ठीक है. एनी डाउट इन स्लैश एंड %/%? एनी डाउट? नो सर. No, sir. ठीक
ये फंक्शन आप सी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, सी लैंग्वेज में भी मैथ्स फंक्शन में फंक्शन मैथ डॉट एच फाइल में फंक्शन है फ्लोर, और CEIL करके फंक्शन है सी लैंग्वेज में। यहाँ पर सीलिंग नाम का फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है दैट विल रिटर्न द सीलिंग वैल्यू, and floor function return the floor value of any particular number. ठीक है, तो this operator is used to find the division of the first vector with the second equation. So if A vector with 3 elements 11, 12, 14 and B vector with 3 elements 2, 4, 5, then if we write A percent slash percent B, तो रिजल्ट क्या आएगा? 11 divided by 2 is 5 point something, तो उसका फ्लोर वैल्यू आएगा 5. 12 divided by 4 is 3.0, तो उसका फ्लोर वैल्यू आएगा 3. And 14 divided by 5 is 2 point something, तो उसका फ्लोर वैल्यू आएगा 2. So this is the result. And last arithmetic operator, यहाँ पे मिस्टेक है, बुलेट पॉइंट 555 आ गया, एक्चुअली 6th है, 7th one, this is 8th one. ठीक है, तो कैरेट सिंबल, लास्ट arithmetic operator है कैरेट सिंबल. This operator raise the first vector to the exponent of the second vector, means पावर कैलकुलेट करने के लिए arithmetic operator प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, 2�3, 4�5, तो पावर कैलकुलेट करने का ऑपरेटर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 2 देन कैरेट सिंबल देन 3, 2�3, इसका मीनिंग क्या है? 2�3, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है. 2�3 मींस कितना होता है? 2�3 इज 8, तो 8 विल गेट डिस्प्लेड वंस यू प्रेस एंटर एट द कमांड प्रॉम्प्ट. यहाँ पे मैंने कमांड दिया है 2�3. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज ए में 4 स्टोर किया है, बी वेरिएबल में 2 स्टोर किया है, और मुझे a⁻b कैलकुलेट करना है. प्रिंट क्या करना है मुझे? a⁻b. तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में? प्रिंट a कैरेट सिंबल b a⁻b. तो a का वैल्यू कितना है? 4, b का वैल्यू कितना है? 2, एंड 4:2 इज 16. 4 स्क्वायर, 4 into 4 16. 2⁴ कितना होगा? प्रिंट b कैरेट a, so b का वैल्यू क्या है? 2, a का क्या है? 4, so 2⁴ is also 16. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 4 टाइम्स. सो पावर कैलकुलेट करने का ऑपरेटर है कैरेट सिंबल. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर के ऊपर वो कैरेट सिंबल दैट पावर ऑपरेटर यूज किया है. ठीक है, इफ a is equal to c of 2 1 4, b is equal to c of 2 3 2, then print a caret b will print 2⁻2 4, 1⁻3 3, and 4⁻2 16. ठीक है, so these are the 8 arithmetic operators that R programming supports. Any doubt in arithmetic operators, students? Any doubt? Yes or no? No, sir. ठीक है, ये ऑपरेटर आपको ज्यादातर यूज करना है बाद में, जब हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसकी वेक्टर है, लिस्ट है, मैट्रिसेस है, डेटा फ्रेम है, तो आपको ये ऑपरेटर तब जाके यूज करना है. तो ये ध्यान में रखो, ये ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्टार, fourth one is division slash percent slash percent and caret. सर एक बार लास्ट वाला समझाए ना सर. Just a minute. Last operator na caret symbol. Yes sir. So this operator is used to calculate power. Power means what? That x raised to y ना, like 10 square कितना होता है? 10 square 100. 100.
So 10 square, 10 raised to 2. The result is 100. 10 square. तो पावर कैलकुलेट करने के लिए ये ऑपरेटर का यूज होता है, कैरेट सिंबल, है ना. What is 8 square? 8 square is 64. So 8. So this is as arithmetic operator of R programming. 8 raised to 2, 64. Okay. So to calculate power, this caret symbol is used, or this caret operator is used, which is comes under the arithmetic operators. Yes, sir. Thanks. Okay. Okay, so today we'll stop here. In next lecture, we'll continue our discussion on remaining operators of R programming, which is relational operators, logical operators, assignment operators, and miscellaneous operators. Then we'll complete this particular topic. Okay, so today we'll stop here. Do not leave the meeting, students. Let me take the attendance.